हेलो एंड वेलकम टू NHA नाहिद हिंदी एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने दुख का अधिकार के लेखक यशपाल जी का परिचय दिया था और जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में मैं आपको इस कहानी को एक्सप्लेन करूँगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा मेरा चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि जो स्टूडेंट्स या बच्चे जिनकी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है बट मदर टंग उनकी हिंदी नहीं है और उनको अच्छा लगता है कि इफ़ स्टोरीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, तो मैं इसीलिए इसकी स्टोरी का फर्स्ट थोड़ा जो समरी है वो इंग्लिश में बता देती हूँ। देन मैं स्टोरी आपको फिर से हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर ऑथर हैज़ पॉइंटेड आउट और in the story has shown us that our dresses, the clothes we wear, divide people in different classes according to our status. And if we have money and we are rich, we wear good clothes, and it determines our status as well as it opens doors of our opportunity for us. But sometimes if we want uh, to sit beside or to sometimes feel what the people who are in low status are going through, or if we wanted to know that if they want to share with us something, but our clothes become hurdle in that and we can't go and directly sit beside them. So in this story, an old woman who lost his son, her son, who used to grow muskmelon in a small plot of land, and he died of a snake bite. And in our society, um, this kind of superstitions and some of the rituals that prevail, and due to lack of awareness, uh, they call exorcist, and whatever little she had is spent in last rituals of that her son. And the old lady, now without anyone to support, and she was helpless, and on top of that she had responsibility of son's wife and uh, their children. So whatever little was she was having, whatever that was spent in that his rituals and everything, and she had nothing. And next day the children, they they were hungry, and the son's wife, I mean that old woman's daughter-in-law, was not well. She was having fever and there was nothing left at their home to eat. So she was so helpless that she had to go to the market to sell whatever some musk melons were left, so that she can feed the her hungry grandchildren. And it was out of that compulsion she goes to the market to sell the musk melon. But the society, who doesn't understand, and that old lady was helpless, and out of sorrow she weeps, and the people around her just pass the ruthless comments, and they say that this lady is shameless. Her son died, but she is coming and selling the muskmelons at the market, and so on.
Here, at that time, author actually wanted to go, but again, his status doesn't allow him, and he couldn't go to her. At that time, he also remembers one rich lady who, who was rich, and she also had lost her son, and she couldn't get up for 2.5 months. She was on her bed, and if at all she used to get conscious, uh, for 15 minutes she used to get unconscious, and 24 hours doctors were there, and people around her used to say, see this lady, she's out of sorrow and grief, she's not able to come overcome the grief. Actually, here author wanted to say that this old lady, the poor old lady, is also was also having the same sorrow, but she had no opportunity or right even to express her grief. I hope you would have understood. So चलो फिर अब हम इसका हिंदी में शुरू करें. दुख का अधिकार. मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है. प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है. वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं. उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है. जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है. तो यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य की पोशाक, जैसे हम कपड़े पहनते हैं और जो जैसे हमारा रहन सहन होता है, वह हमें विभिन्न श्रेणियों में, डिफरेंट क्लासेस में बांट देता है. और कभी कभी हमारे अच्छी पोशाक के कारण हमें कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, हमारे लिए कई बंद दरवाजे खुल जाते हैं. लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि हम अपने से निचली श्रेणी वाले लोगों से बातें, उनसे उनका दुख बांटें, पर उस समय हमारी पोशाक ही हमारे लिए बाधा बन जाती है. और इसके लिए लेखक यह एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि अगर पतंग कट जाती है तो एकदम से नीचे नहीं गिर जाती, वो वायु की लहरों में थोड़ी देर के लिए आकाश में ही रहती है, उसके बाद वह गिरती है. इसी प्रकार हमारी पोशाक हमें एकदम से झुक सकने से रोके रहती है. हम अचानक से जाकर अपनी से निचली श्रेणी वालों के साथ बैठकर उनका दुख नहीं बांट पाते. बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे. खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी. खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता. खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी. तो यहाँ लेखक यह बताना चाहते हैं कि बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में या कुछ ज़मीन में बिक्री के लिए एक बूढ़ी औरत लेकर बैठी थी. और खरबूजे बिक्री के लिए थे, वो बेचने के लिए आई थी, परंतु लेकिन खरीदने के लिए कोई आता भी कैसे, क्योंकि वह बेचारी अपना सिर झुकाकर रो रही थी. ओके. पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे. उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था.
फुटपाथ पर समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधा बन खड़ी हो गई थी। अब लेखक ये कहते हैं कि पड़ोस में जो उसके आसपास दुकानों पर लोग बैठे या बाज़ार में खड़े लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, उस स्त्री के बारे में। और इसको उसका रोना देखकर लेखक के मन में थोड़ा लेखक को दुख हुआ। वो चाहते थे कि जाकर उससे पूछे या उसका दुख बांटे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, लेखक कहते हैं कि उनकी पोशाक ही यहाँ उनके लिए बाधा बन गई और वह उसके पास ना जा सके, और बस फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में उनकी पोशाक के कारण वह न जा पाए। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के लोग थे वो उसके बारे में कैसे बातें कर रहे थे। एक आदमी बहुत ही घृणा से थूकते हुए कह रहा था कि इस औरत का लड़का मरा हुआ है और एक दिन भी नहीं हुआ है, और ये बेशरम औरत, बेहया औरत दुकान लगा के बैठी हुई है। और दूसरा आदमी चाचा वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए वो कहने लगा, देखो जिसकी नीयत यानी जिसका इरादा जैसा होता है अल्लाह उनके साथ वैसा ही करता है, कह के दूसरा आदमी कह रहा था। और सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। और एक आदमी दिया सलाई यानी मैच स्टिक, तो उससे कान खुजलाते हुए कह रहा था कि ये लोग बहुत ही ख़राब कमीने लोग होते हैं, इनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, बेटा बेटी है, कसम लुगाई यानी पति पत्नी का, और इनका धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा यानी ये पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। इस तरह से दूसरा आदमी कह रहा था। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे बचा रहेगा, क्या अंधेर है। और जैसे कि एक समाज में, सोसाइटी में एक रिचुअल है समाज में कि जब किसके घर में कोई मर जाता है तो 13 दिन के लिए शोक मनाया जाता है, और उनके घर में कोई खाना वाना या पानी तक कोई नहीं लेता। ऐसा इस समाज में जो थोड़े थोड़े इनके कुछ रीत हैं। तो सामने बैठा आदमी, मतलब जो परचून की दुकान में यानी दाल चावल जहाँ बेचते हैं उसमें बैठे लाला जी, वो कह रहे थे कि 13 दिन का सूतक लगता है और ये दूसरों का धर्म और ईमान भ्रष्ट कर रही है और खरबूजे बेचने आ गई है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था और घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर के ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढस लिया। लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ
आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। तो यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि उस बुढ़िया के बारे में यह पता चला कि उसका एक 23 ईयर्स 23 वर्ष का एक जवान लड़का था, जो छोटी सी ज़मीन के टुकड़े 1.5 बीघा ज़मीन के टुकड़े में खरबूजे उगाता था। तो वो उसी से कभी वो खरबूजे बाज़ार में पहुंच जाकर खुद बेचता और कभी उसकी माँ आकर बैठा करती थी, और वह रोज़ सुबह जाता था। इसी तरह वो भी सुबह सुबह गया और खेत में जैसे गीली मेड़ होती है कच्ची मिट्टी की बनी हुई, मतलब पानी को रोकने के लिए, तो उस पर उस उसके उस पर एक सांप विश्राम कर रहा था। इस लड़के ने नहीं देखा और उसका पैर उसके ऊपर पड़ गया और सांप ने उसको डस लिया। तो इसीलिए वो लड़के को अब इलाज के लिए, जैसे कि गांव में एक तो गरीबी, ऊपर से कुछ अवेयरनेस भी नहीं, तो ओझा जो झाड़ फूँक करता है उसको बुला ली और बाकी जो भी था पैसा उसको देकर दान दक्षिणा में चला गया, और कुछ अनाज था वो सभी दक्षिणा में चला गया। और बहू और बुढ़िया के पास कुछ अब बचा नहीं। अब माँ, बहू और बच्चे भगवाना है यानी उस लड़के का नाम भगवाना, बुढ़िया के बेटे का नाम, से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफ़ा चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प से विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। तो एक बार चुप हुआ यानी सर्प के विष के कारण उसकी मृत्यु होगी और उसका सारा शरीर काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यहाँ लेखक यह कहते हैं कि अब जब अंतिम संस्कार के लिए बिना कपड़ों के या तो आदमी का संस्कार नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ रीत होती है। और लेखक यही कहते हैं कि अब मुर्दे के लिए कुछ जो भी है रीत है अंतिम संस्कार की, वो तो निभानी पड़ती है। इसीलिए बाज़ार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। तो लेके यही कहते हैं कि अब जो कुछ भी है, अब अंतिम संस्कार के लिए जो रीत है वो करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो कुछ भी बचा था वो भी ख़त्म हो गया। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी वो उसे विदा करने के लिए चली गई। तो भगवाना की मृत्यु हो गई और जो कुछ उसके माँ के हाथ में जो भी था वो उसका अंतिम संस्कार के लिए ख़त्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब जो कुछ था अपने बेटे के अंतिम संस्कार में ख़त्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं था। अकेली थी बूढ़ी औरत, और अब बेटा भी कमाने वाला चला गया तो कोई उधार भी नहीं देगा। अब ऐसे में अब क्या करती बेचारी। और पिता की तो बच्चों के पिता की मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन बच्चे अब भूख से रो रहे थे। अब उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए था, तो दादी ने कुछ खरबूजे तो दे दिए, लेकिन बहू को बुखार था, अब उसे खाने के लिए क्या देती। तो मजबूरी में, और कोई उधार भी नहीं देता, तो मजबूरी में बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाज़ार की ओर चली। मजबूरी में अब उसे जो भी खरबूजे भगवान ने मरने से पहले जो बटोरे थे वो समेटकर वो बाज़ार में चली, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस कर कर आई थी, परंतु
सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए फफक कर रो रही थी। वो तो किसी तरह साहस कर कर खरबूजे बेचने तो चली आई थी, लेकिन दुख के कारण वह अपना सिर झुकाए रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वहाँ बाज़ार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। लेखक कहते हैं कि कल उसका बेटा चल बसा, लेकिन आज उसे मजबूरी में बाज़ार में सौदा बेचने जाना पड़ा। लोग उसकी मजबूरी समझे ना समझे, उसे बेहया कहे, लेकिन वह बेचारी बहुत ही मजबूर थी। इस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में और आंखों से आंसू रुक न सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। तो यह इस वीडियो को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की एक महिला की याद आई, जो कि बहुत अमीर थी, सम्रांत थी। तो उनके भी पुत्र का मृत्यु हो गई थी और उस वियोग में, उस दुख में वह बहुत ही दुखी हो गई थी और 2.5 मास यानी 2.5 मंथ्स तक वह बिस्तर पर ही पड़ी रही। उसके पास 24 घंटे डॉक्टर रहते थे। जब भी होश आता 15-15 मिनट में बेहोश हो जाती थी। जब भी होश आता तो उसकी आंखों में आंसू ही रहते थे और वह रोती रहती थी और लोग कहते थे देखो कितनी दुखी हैं। तो यह लेखक यही बताना चाहते हैं कि बुढ़िया भी बहुत ही दुखी है, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास अपना दुख प्रकट करने का ना तो अधिकार है और ना ही अवकाश। यह महिला अमीर है तो इनके पास अधिकार है और अवकाश भी है। माँ, दोनों भी माँ हैं, दोनों का दुख एक है, लेकिन गरीब और अमीर का फ़र्क यहाँ बताते हुए लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो वर्ग संघर्ष है वो कितना गहरा है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो, उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राहत चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख का भी अधिकार होता है। तो लेखक यहाँ ये बताना चाहते हैं कि सहूलियत, अपना शोक प्रकट करने के लिए भी एक अवकाश, जैसा कि मैंने बताया, एक अवकाश चाहिए, सहूलियत चाहिए और दुख प्रकट करने के लिए भी इसके लिए भी सहूलियत होती है। हमें अमीर होना ज़रूरी है। गरीब लोगों के पास ना वो अधिकार है ना वो अवकाश है। थैंक यू चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। अगर आप कमेंट करें तो हम प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न अभ्यास करें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना हम दूसरा टॉपिक जो भी आपको पसंद है उसके बारे में लिखना, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।